Hello everyone, I am Justina Paris and I welcome you all to today's discussion of 20 questions from CLAT perspective आज के न्यूज पेपर से जो है 9th जुलाई 2024. So let's start with the first question. पहला क्वेश्चन है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये कौन पब्लिश करता है? We have seen in today's article, it is the Forest Survey of India. And can you tell me what is the tree and forest cover of India? ये आप comment section में add कर दो. What is the tree and forest cover of India that is given to us by India State of Forest Report 2021? Let's understand the next question of the day. जो अगला question है, this is with regard to in which year did India sign the Soviet Peace and Friendship Treaty? ये हमने आज के आर्टिकल में देखा because we know Prime Minister has gone to Moscow to meet his counterpart, that is Vladimir Putin. तो यहाँ पे आंसर क्या है? 1971, right? 1971. फिर 2000 में हमने Strategic Partnership Treaty साइन की थी, and then in 2010 we talk about Special and Privileged Strategic Partners बने थे with the Russia. So remember this aspect. Second A. Next question. Which of the following organizations is not a common grouping? Not a common grouping पूछा है of India and Russia. तो हम देखते हैं शंघाई कोऑपरेशन में इंडिया एंड रशिया दोनों पार्ट है, ब्रिक्स में दोनों इंडिया और रशिया पार्ट है, G7 में नो, नॉट इन G7, राइट. हम देखते हैं G20 में yes India and Russia both are part, but G7 में we know that they are not a part of it. तो इसका आंसर है C. Let's understand the next. In fact G7 की अगर हम बात करें, ये दोनों रशिया इंडिया पार्ट नहीं है. G8 बना था for a very short time. Russia was part of it, but because of the annexation of Crimea, we know that G7 वापस बना, रशिया को बाहर निकाला गया था, and it was back again to G7. So therefore the answer to this is C, G7. Let's understand the fourth question. What is the public health expenditure or spending of India as percentage of GDP? कितना स्पेंडिंग है? 1.35%. और कितना हमारा टारगेट है? टारगेट है 2.5%. सो दिस इज द टारगेट जो हमारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी कहता है बाय 2025. ओके, एंड दिस इज द करंट स्पेंडिंग. सो आंसर टू दिस इज P. लेट्स अंडरस्टैंड द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the purpose of the production linked incentive scheme? क्या है हमारा प्रोडक्शन, क्या है हमारा मकसद? To boost domestic manufacturing, increase export, decrease import, है ना. तो इसका आंसर है 5B. हमने देखा था व्हाइट गुड्स के रीजन में, व्हाइट गुड्स के आर्टिकल में हमने ये कवर किया था. नेक्स्ट एस्पेक्ट, which of the following is not considered as a white good? I told you, luxury household appliance. Now we know these three are luxury household appliances, but not television. Like television is not considered as a white good. तो इसका आंसर है D. Next question. The United Nations has said 2025 will be designated the international year of. इसको क्या माना जाता है? आज के आर्टिकल में भी डिस्कस किया था. The answer to this is quantum science and technology. So 7 is C. Next question. During hurricane, due to which force a whirling motion is caused? रोटेशन मोशन जो होता है ये किसके वजह से होता है? It is the Coriolis force. We have discussed this in the article. इसका आंसर है A. Next question. हमने देखा है हैरिकेन बेरिल इज इन द न्यूज. सो यहाँ पे कौन से ओशन में है? क्या ये इंडियन के ओशन में है? नहीं. विच ओशन डिड वी सी? अटलांटिक ओशन. इसका आंसर क्या है? 9D. एंड वी नो हरिकेन जो है मोस्टली, ये वर्ड जो है आपको इसमें समझेगा, हरिकेन इज मोस्टली यूज्ड इन अटलांटिक. अगर हम इंडियन ओशन की बात करते हैं, वी कॉल इट अ ट्रॉपिकल साइक्लोन. ठीक है, वी मोस्टली कॉल इट अ ट्रॉपिकल साइक्लोन. पैसिफिक ओशन में अगर हम देखते हैं, हमारे वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में वी नॉर्मली हैव द वर्ड टाइफून यूज्ड. तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में हम इसको टाइफून कहते हैं. एंड इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को एक दूसरा नाम देते हैं, दैट इज विली विलीज. ठीक है, विली विली. सो दिस इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन ऑस्ट्रेलिया. So this is the important aspects. Let's understand the next question. जो सेंटर होता है हरिकेन या ट्रॉपिकल साइक्लोन का, इसको क्या कहते हैं? We call it the
आई, एंड अगर वो सराउंडिंग आई के जो रीजन में, तो आई वी नो इज अ वेरी काम रीजन, राइट, ये काम रीजन कहते हैं, लो प्रेशर एरिया होता है ये, लेकिन ये वाला पार्ट जहां पे थंडरस्टॉर्म्स एक्सपीरियंस करते हैं, इसको हम कहते हैं आई वॉल। ये आज के आर्टिकल में भी देखा था। सो रिमेंबर दीज इंपॉर्टेंट वर्ड्स दैट कैन बी आस्क्ड। 11th क्वेश्चन, कितने कैटेगरीज होते हैं हरिकेन्स में? हमने देखा था हाउ मेनी कैटेगरीज आर देयर? देयर आर 5 कैटेगरीज बेस्ड ऑन द विंड स्पीड एंड द पोटेंशियल डैमेज। तो ये जो हरिकेन बेरिल है, ये पांचवी कैटेगरी, 5th कैटेगरी इसको नोट किया है। लेट्स अंडरस्टैंड द 12th क्वेश्चन, which legislative code does the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 रिप्लेस, किसको रिप्लेस करता है? व्हाट इज योर आंसर? द आंसर इज बी, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC को रिप्लेस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू द RBI का लेटेस्ट रिपोर्ट, टोटल एम्प्लॉयमेंट क्या है? हमारा टोटल एम्प्लॉयमेंट वैल्यू के टर्म्स में पूछा है। द आंसर इज 64.33 करोड़। ठीक है, आज के आर्टिकल में हमने देखा 6% इंक्रीज हुआ है एम्प्लॉयमेंट रेट, सो आंसर इज 64.33 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे? वी हैव सीन दिस इन द आर्टिकल। व्हाट इज द आंसर? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर। नाउ यू आर गोइंग टू टेल मी विच मिनिस्ट्री के अंदर आता है द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर? व्हाट इज the ministry involved? Please mention this in the chat box today. Next question, labor force participation rate is given by, यहां पे हमने फॉर्मूला भी देखा था, what is the labor force participation rate? What is it? यहां पे हमने देखा it is the labor force, right? We saw the labor force. labor force में कौन आता है? It is mainly your एम्प्लॉयड पीपल, जो एम्प्लॉयड हो चुके हैं, एंड दोज दैट आर विलिंग टू वर्क, जो 15 से 64 एज ग्रुप में जो काम करना चाहते हैं और जो काम में है, इनको हम बोलते हैं लेबर फोर्स। तो ये तो लेबर फोर्स ए या सी में आएगा। अपॉन what is it? It is on your working or the adult population. हमने कहा था working population या adult population. So total working or adult population. So what is the into 100, right? So it's a percentage of this. So इसका ये फॉर्मूला है, हमने आज के आर्टिकल में देखा है। What is the answer to this? The answer is A. It is not on total population. जो काम कर सकता है बस उसका हमने वो फॉर्मूला है, right? So इसका आंसर क्या है? A. Okay, labor force as percentage of working age population. So this is the formula for labor force participation rate. Question 16, which country has the highest expenditure of GDP on healthcare? कौन सा ऐसा कंट्री है जो ज्यादा स्पेंड करता है of their GDP on healthcare? The answer is USA, about 10% ये स्पेंड करता है। इंडिया हम देखते हैं करंटली कितना स्पेंड करता है? 1.35%. So you see the relation where which country is spending. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है प्रपोज करता है कि पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना होना चाहिए बाय 2025? वी हैव सीन द आंसर इज बी, 2.5%. Okay, so 17 answer is B. Next question, which country is the latest to join the Shanghai Cooperation Organization in 2024? आज के आर्टिकल में हमने शंघाई कोऑपरेशन के बारे में हमने जिक्र तो किया था, बट यहाँ पे रिसेंटली ये न्यूज में भी था, तो आप मुझे बताओ व्हाट इज द आंसर? बेलारूस। बेलारूस इज द लेटेस्ट वन। लास्ट हमने देखा था ईरान ने ज्वाइन किया था, राइट? पाकिस्तान, इंडिया ने ज्वाइन किया था 2017, 23 में ईरान, एंड नाउ इन 2024 वी हैव बेलारूस। सो आंसर टू दिस इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country will host the BRICS summit in 2024? अक्टूबर में जो समिट होगा, कौन है ये चेयरमैन? We have seen this, that is Russia. Answer to this is B, Russia. Next question and the last question of the day, what is the total forest and tree cover? So what is the total and forest tree cover? 24.62. Remember हमने ये डिस्कस भी किया था, ये टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है तो 24.62%. अगर सिर्फ फॉरेस्ट कवर पूछा गया होता देन योर आंसर वुड हैव बीन 21.71%, और अगर सिर्फ ट्री कवर पूछा था द आंसर वुड हैव बीन 2.91%. और हमारा कितना टारगेट है? व्हाट डिड वी डिस्कस? इट इज 33%, राइट? नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कहता है 33% होना चाहिए. सो दिस वाज ऑल विद रिगार्ड टू द 20 क्वेश्चंस ऑफ द डे. आई होप यू हैव रिसीव्ड और गॉट मेनी क्वेश्चंस करेक्ट. थैंक यू सो मच.